جی انہوں نے پہلے کہا تھا. نہیں انہوں نے پہلے کہا. اچھا چلے انہیں کہا راشد تفیض. آپ بعد میں حضرات پروفیسر راشد اس کے بعد تبسم صاحب. میرا ذاتی صاحب سے سوال ہے کہ موجودہ جو غزہ اور ایران بیٹل فیلڈ بنا ہے یہ ابراہیم معاہدے کی تکمیل کا حصہ ہے یا برکس کے مقابل کے لیے طاقتوں کا آزمایا جا رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کہہ رہے ہیں. جی ذاتی صاحب لائن جی مائک لائن. دیکھیں غزہ میں جو حماس نے مزاحمت کی اس کے بارے میں مڈل ایسٹ کر لیں یا غزہ اور ایران کر لیں، دیکھیں ان کی جو برکس کے ساتھ حمایت ہے وہ پیش نظر ہے یا جو ٹرمپ کا جو موجودہ فنامنا ہے ابراہیم معاہدہ اور خود جو اس کی بالکل داخلی میں نے جو سمندر رابطہ کیا وہ یہی کیا ہے کہ دنیا میں معاشی سب بندی ہے اس میں بڑی کوالٹیٹیو چینج آ رہی ہے اور وہ کوالٹیٹیو چینج آنے کا پروسیس پچھلے کئی دہائیوں سے شروع ہوا اور وہ تیز ہو گیا. ارلی 80s سے شروع ہوا ہے. ارلی 80s سے شروع ہوا. ارلی 80s سے شروع ہوا جو ریگن اور تھیچر کا دور تھا وہاں سے شروع ہوا، لیکن اس کے بعد میں یہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس میں تیزی آ گئی. سارا مسئلہ میں دورانی چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک پہلو ہے بالکل کہ یہ جو مڈل ایسٹ اس وقت بیٹل فیلڈ بنا ہوا وہ بنیادی طور پر یہ جو دو بڑے سخت بندیاں ہیں بنیادی طور پر ان کے درمیان ایک بیٹل فیلڈ بن گیا اور فیصلہ اسی میں ہو جاتا ہے. فیصلہ ایسے نہیں ہوگا کہ بھاگ جائے گا اور دوسرا رہ جائے گا. ان میں کہیں نہ کہیں تو نئی سربندی آئے گی. جیسے پہلی جنگ عالمی جنگ کے بعد آئی ہوئی ہے. اچھا یہ کوئی تیسری عالمی جنگ نہیں ہے، اس طرح کی نہیں ہے جو کہ 1918 سے شروع 1914 سے شروع ہو کے 18 میں ختم ہو گئی. 4 سال تسلسل سے جاری رہی. دوسری جو ہے وہ 39 سے شروع ہوئی اور 45 میں آج تک ختم ہو گئی. یہ بٹس اینڈ پیسز میں لڑائی جو ہے تیسری عالمی جنگ جاری ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے وقفے آتے رہیں گے اور پھر یہ شروع ہوتی رہیں گے. لیکن اب اس کا بیٹل فیلڈ مڈل ایسٹ ہے. یورپ بنا ہے یوکرین کے حوالے سے، لیکن مزید ویسٹرن یورپ میں یہ جنگ اب نہیں جائے گی جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں یا فرسٹ میں گئی. اب بیٹل فیلڈ جو ہے وہ ہمارا ہے اور اس کی ریئلائزیشن کے حوالے سے یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر واضح طور پر بڑے زیادہ طور پہ وہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہیں. اب اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو اور اس ٹوٹ پھوٹ میں جو ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی حماس کو دبا کے حزب اللہ کو دبا کے ایران کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے انٹیلیجنس کے اندر جا کر تو اس میں ان کو کامیابیاں حاصل ہو گئی. لیکن یہ جو وار ہوتی ہے وار میں بہت ساری پیٹرنس ہوتی ہیں اور یہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے یہ کنٹینیوس ہے. اس کے اندر بہت ساری جنگیں ہوں گی، مسلسل جنگیں ہوں گی تو ہو رہی ہیں. ابھی یہ سیز فائر ہوا ہی آ رہی ہے مزید جنگ ہوگی. آپ نے اپنے علاقے میں انڈیا پاکستان کے 4 جنگ ہوئی پھر ہو یہ علاقہ جنگوں کی لپیٹ میں رہے گا. لیکن یہاں لوکل آپریٹو کنٹرڈکشن ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے اور یہ سارا کھیل جو ہے یہ اسلحے کے لیے ہوگا یا پاکستان انڈیا کے اندر یا کشمیر کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور سارا کھیل اسلحے کے لیے ہوگا تو یہ محض ایک ڈائمنشن کو دیکھتے ہیں. باقی جو اس وقت یہ اور بھی کئی ہیں. ابھی دیکھیے آپ نے انڈو پیسفک اکنامک کوریڈور یہ چائنیز اکنامک کوریڈور کے پہلے امریکہ نے کری تھی. اس کا انڈیا نے لیڈر بنایا لیکن وہ بہت پیچھے رہے. پھر کویت بنایا جس میں انڈیا آسٹریلیا جاپان امریکہ وہ شامل ہوئے. اب کویت کے پیچھے رہ گئے. تو یہ بنے گے بگڑیں گے بنے گے بگڑیں گے. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب بندیاں بن کے کچھ ہفتے کے لیے ٹک جائیں پھر اس میں بریک آتے. اب کوئی سب بندی ٹک ہی نہیں پا رہی. یعنی آج ایک سب بندی بنتی ود ان امریکہ سب بندیاں ٹک نہیں پا رہی. یار کل تک میں نے کہا اور بس ہیرو تھا ملینز آف ڈالر خرچ کر رہا تھا اب اس کے خلاف پڑا.
तो ये जो पीरियड है ना, ये बड़ी नई नोयत का पीरियड है। और इसमें अभी मैं गुजारिश ये करूँगा कि जो ऑपरेटिव कंट्राडिक्शंस हैं उनकी जरियात को सामने रखते हुए टोटलिटी को देखा जी अब्दुल मुबस्सम साहब जी, इनके बाद अब्दुल मुबस्सम साहब। डॉक्टर साहब, मतलब दलिया साहब से दो सवाल है, एक इकोनॉमी पर है, दूसरा क्योंकि ये WTO 1996 मराकश में पहला एजेंडा अमेरिका का था, आपको भी मालूम है। उस एजेंडे में आज वो तमाम जो था WTO का जो एजेंडा था, उस एजेंडे का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को पहुँचा है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी और चाइना की जो प्रोडक्शन और सारी दुनिया के अंदर उसकी सरमायाकारी और उसकी जो जितनी भी प्रोडक्शन है, तकरीबन मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया की 97% जो इकोनॉमी है वो तमाम जो गरीब लोगों के आवाम की जो चीज़ें हैं, कंज्यूमरिज्म जो जितना चाइना के पास है, अमेरिका के पास अगर है तो जनाब अमेरिका की भी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी टेक्निकली हमें शायद सवाल करना नहीं आता, हम पैरेलल खुतबा देते हैं। ये मैं आप बड़े हैं मेरे, पैरेलल खुतबा ना दें, सवाल करें। ये इकोनॉमी जो थी पहले ये उनके हाथ में थी अमेरिका की, लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि आज वो पीछे रह गया और चाइना आगे निकल गया। तो ये सवाल है कि 96 में जो एजेंडा ये अमेरिका का था, अब उसका फायदा WTO का चाइना को मिला है और छोटे मुल्कों को मिला है जिनकी बात तो अब आज के दौर में अभी जो जंग हुई है, क्या ये पोलराइजेशन नहीं हो गया, दुनिया के अंदर डिवाइड हो गया कि चाइना किसके साथ है, रशिया क्यों खामोश है। आज चाइना का जो किरदार है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी, अमेरिका कहाँ पर, रशिया कहाँ पर। जी ज़्यादा साहब ज़रा मुख्तसरी जो आप रखिएगा ताकि बाकी दोस्त भी शामिल करें। जी टाइम काफ़ी हो गया, अब जो अलाइनमेंट है ना, उसमें 10 बजे हम ख़त्म करते हैं। उसमें उस तरह का वोटर अभी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि चीन और रूस में खास तौर से चीन ने बड़ी सी मारी ईरान के साथ, उन्होंने उसको कहा कि लड़ाई जिसने क्रॉस की, लेकिन जिस तरह की बढ़ती अमरीका या ट्रंप की तरफ से आ रही थी वो इस तरफ से नहीं है। और तो ये जो आपका सवाल है कि मीशत का रोकने का सारी चीज़ें सबसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं कभी नहीं करना चाह रहा। WTO पर अब ग्रेजुअली जो है ना ये ईस्टर्न ब्लॉक का होल्ड हो जाएगा और आप या 10 साल के बाद देखेंगे कि डॉलर डिसाइजन कानूनी या करेंसी नहीं रहेगी। दुनिया में एक्सचेंज जो है वो अपनी अपनी करेंसी शुरू कर दी है। चाइना से सऊदी अरब जो है खरीद रहा है रियाल में या युआन पर। इसी तरह से जो चाइना रशिया की करेंसी है उसके अंदर एक्सचेंज होना शुरू हो गया, डॉलर पर पीछे जाएगा। तो ग्रेजुअली वेस्टर्न जो डोमिनेशन है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी और जो नई इकोनॉमिक सेंटर पावर इमर्ज हो रहे हैं वो डेवलप करते जाएंगे। अब इसी में मैं ये थोड़ा इजाफा करूँ कि जैसे शासन ने कहा कैपिटलिज्म की हम नई सीखें आ गई, जैसे मार्केट इकोनॉमी की शक्ल में देखना चाहिए। और ये जो चाइना का ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, ये उस तरह की इंपेरियल्स या कॉलोनियल पावर नहीं होगा, ना कि अपनी के हुकूमत होगा, बल्कि ये नई तरह की मार्केट इकोनॉमी का मार्केट ऑपरेटर होगा या मार्केट प्लेयर होगा जिसकी एक नई शक्ल होगी। अब उसको मैनेज करने के लिए या अवाम के हक में लाने के लिए सोशलिस्ट या जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं उनको किस तरह से अपनी पॉलिटिकल लाइन बनानी चाहिए, ये आजकल बड़ा अहम सवाल है। बात यह है कि आप अपना कॉन्टेक्ट अगर अपने आवाम के हवाले से बनाएंगे तो फिर आप उससे ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे। हमारे यहाँ अभी आजकल की बहस नहीं जाना चाहता तो फिर विवाद हो जाएगी कि चाइना सोशलिस्ट है या नहीं, भाई वो है या नहीं है। आपका सर्टिफिकेट मिलने से ना आपको फायदा होता है ना तो नुकसान। आपको देखना ये है कि अगर आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के अवाम के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आप जो चीज़ से मार्के करेंगे जैसे पीए हुए उससे पाकिस्तान के अवाम की भलाई रखी गई है या नहीं होती। मुझे इस बात से कोई गलत नहीं कि चाइना क्या है, मुझे इस बात का गलत है
जो उसने ये पावर के प्रोजेक्ट लगाए हैं उसमें उसने अपना मुनाफा और अपना इंडस्ट्री पेमेंट क्या वैसा ही रखा है जैसा मगरब जाने वाले रखते हैं, और अगर वही रखा है तो मेरे मुकाबले को वोट नहीं। ये अवाम का पर्सपेक्टिव जो डिसाइड करेगा नई उभरती हुई मार्केट। जी शुक्रिया जी राणा साहब। मेरा ख्याल है कि पीछे शहजाद बैठे हैं, आपने आखिरी सवाल आपका है। डॉक्टर साहब भी हैं। अच्छा हासन जाफर साहब से दो सवाल हैं। एक तो ये कि जैसे आपने भी फरमाया कि ये जो जंग है ये रुकी है, फर्दर भी इसकी कॉन्टिन्यूटी है, वहाँ पे इसी हवाले से जा नीतन आपने फरमाया कि इसी हवाले से क्या इसी प्लानिंग के लिए जंग वक्ती तौर पर रुकी है कि फिर से स्टार्ट हुई। अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा है और चाइना और रशिया की पुष्टपनाही या सपोर्ट इनडायरेक्टली ईरान को हासिल रही है। शहजाद साहब आगे आ जाए। तो ये जब ये दोबारा से जो मामला स्टार्ट होगा तो क्या उसमें जो शिद्दत आती है तो क्या ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के कोई इम्कानात मौजूद हैं चाइना के या रशिया के? और दूसरा सवाल ये है कि जो गर्म जपशी हुई है जनरल साहब की वहाँ पे वाइट हाउस में, उसमें क्या लालच दिया गया, तो क्या थ्रेट्स हैं? वो थ्रेट्स अगर हैं मेरा ख्याल तो इंडिया ये सवाल पिछली दफा बड़ा अच्छा जवाब दे दिया था, हो चुका हुआ है। इंडिया के बारे नहीं कोई जवाब नहीं नहीं दिया उसमें इंडिया के हवाले से या फिर मतलब अमेरिका का जो अपना प्रेशर है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारा चीन के साथ बड़ी शराकतदारी है उस पर क्या? थैंक यू। वैसे इसका जवाब मुझे नहीं मिला। मोइंदी साहब ने दे दिया था, बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उस उदाहरण दी थी उन्होंने जवाब नहीं नहीं सुन लीजिएगा वीडियो में उसका जवाब दीजिएगा। जी एक तो बात ये है कि ये अब नई जब ये एक्सपीड होना शुरू होता है तो इसमें क्या अहमियत क्या है चीन की प्राय रात रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान के 3-4 लाख तक बढ़ चुका है। ये मैं गुजारिश नहीं किया था कोई अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट तो मज़ार शरीफ में चाइना की ट्रेन आ चुकी और उसके बाद उन्होंने इतनी तेज़ी से तालिबान के आने के बाद उन्होंने वापस एटमॉस्फेयर बन गया तो रेलवे ट्रैक ले डाउन किया है इस रफ्तार के साथ कि जो रेलवे ट्रैक सालों में बनता था वो महीनों में बनता और 4 बार तक उनका रेलवे ट्रैक इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है और चाइना से बाहर करना बाहर नहीं और क्या इसी तरह से एक और कॉरिडोर उन्होंने रेलवे ट्रैक बिल्ड कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के। तो ये वो अल्टरनेटिव रूट अपने बना सकते हैं तो उनके लिए ईरान की अहमियत बहुत ज़्यादा है और उसी तरह से कि चाइना के लिए इसकी जो अप्रोच है गल्फ रीजन के साथ बेहद अहम हो चुकी है। तो इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो ईरान को सपोर्ट करे और उसने किया है उसकी मदद से ये मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब जब अगली जंगों की सूरत आती है तो इसके अंदर प्राइमरीली तो चीन की पॉलिसी हमेशा ये होती है जो वो खामोशी से काम करता है, लेकिन एक स्टेज आ सकती है कि जहाँ वो वोकल हो, लेकिन अभी वो वोकल कहाँ होता है तो साउथ चाइना सी में होता है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े और चाइना के जंगी बेड़े आमने सामने होते हैं। फिलिपाइन में जो अड्डा है अमेरिका का उसके सामने चीन के जो जंगी बेड़े लगा रहे होते हैं। तो मैं इसको रूल आउट नहीं करता कि चाबहार में चीनी बेड़ा भी हो और सामने अमेरिका का सामने बेड़ा भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है उस सिचुएशन के आने से पहले जो यहाँ की जियो पोलिटिकल बैलेंस या इम्बैलेंस होने जा रहा है वो अपना कोई डिसाइसिव रोल जो अब दूसरा सवाल आपका पी पार्षद साहब के हवाले से है। इनकी 2-3 हवाले हैं जो सामने आए हैं। एक तो उनके बेटे के साथ क्रिप्टो करेंसी का हवाला है
हुआ है, जिसकी वजह से मुलाकात हुई। दूसरा उनको देने के वादे से वादा किया गया उसको, क्योंकि तीसरी बड़ी ऑफर जो है वो यहाँ पे जो रेयर मिनरल्स हैं जो कि चिप बनाने में इस्तेमाल होती हैं, वो रेयर एलिमेंट्स देने का वादा किया गया है। और वो रेयर जो मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं वो अमेरिका को इस वक्त चाहिए, चाइना को नहीं चाहिए। और ये ऑफर्स की गई हैं, ये मिलकर होती हैं, नहीं होती हैं, मेरा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत जी जी डॉक्टर साहब डॉक्टर ताज जी मेरा एक सबसे पहले एक मिनट। मुझे ना शाह साहब उनके कमर का प्रॉब्लम है, वो तकलीफ में है। मैं इसलिए कह रहा था कि सबसे पहले तो मेरा ये है कि मार्क्सिस्टों का मसला मदद कभी भी नहीं रहा, ना हमारा मदद का मसला है। मदद अगर मसला है तो लिबरल का मसला है या लाहौरी मार्क्सिस्टों का मसला है जो NGO के लिए काम करते हैं। असल मार्क्सिस्ट है जो उनका मसला मदद नहीं है। दूसरी बात जो यतिया वाक़ियात पाकिस्तान में कहती थी कि जी मार्क्सिज्म खत्म हो चुका है, सोशलिज्म खत्म हो चुका है, तो उनको ये नजर आना चाहिए अगर ये जंग हो रही है तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की हो रही है, दाएं बाजू और बाएं बाजू की जंग हो रही है। इसमें जो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, एक तरफ नेटो के मुल्क हैं, एक तरफ चीन, रूस, कोरिया और ईरान है। तो इससे पता चलता है कि सोशलिज्म मौजूद है किसी न किसी चक्कर, बल्कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। अफ्रीका के सारे मुल्कों में सोशलिस्ट तहरीकें स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जनूबी अमेरिका के सारे मुल्कों में स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इंग्लैंड में न्यूयॉर्क में और लंदन में, लंदन का मेयर सोशलिस्ट है। और अगर न्यूयॉर्क में भी जीत जाता है सोशलिस्ट तो इसका मतलब है कि मार्क्सी शाऊर जो है वो यानी वो इकनॉमिक डाउन नहीं हुई, मार्क्सी शाऊर बढ़ा है लोगों का। लोगों में ये शाऊर बढ़ रहा है कि 99% मेहनत करते हैं और 1% खा रहे हैं। ये यूरोप में भी बढ़ा है, अफ्रीका में भी बढ़ा है। सवाल मेरा ये है कि अगर इसका जो इब्राहिम कार्ड के मुताबिक अगर अमेरिका अब हल चाह रहा है, छितर खा के शायद जो भी छितर पड़े हैं, शायद वो सिंसियर हो के इसका हल कर ले, तो इसमें क्या हर्ज है अगर ये हो जाए तो। हामिद मीर जैसा साहबी कहता है जी कायद आज़म ने कहा था इसराइल नाजायज मुल्क है, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। 19 मई 1948 को इंग्लैंड की फौजें इसराइल से निकली थी, उसके बाद आज़ाद हुआ। कायद आज़म तो बिस्तर मरक पे पड़ा था उस पर। उसने ये बात कब कह दी कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ये हल निकलता है तो आप इस बारे में क्या राय है कि इब्राहिम कार्ड के मुताबिक दो रियासत की हल निकल ये आना चाहिए था भारत। जी जी शेख साहब कुछ आगे शेख साहब आप मुख्तसर रखिएगा सवाल को, सिर्फ सवाल करिएगा। The Ibrahim Accord is nothing but to rationalize the existence of Israel. इसके अलावा मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी जो आपने बात की ना कि 48 में तो इसराइल जब बना तो ख्याल तो बात ये है कि फलस्तीन की तहरीक बहुत पहले शुरू हो चुकी है। मसला फलस्तीन 48 में शुरू नहीं हुआ, इसका हिस्टोरिकल इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने के लिए रेडियो वीडियो है 40-45 मिनट की, वो अगर दोस्त शेयर कर लें आपको देख लीजिएगा। 1931 में फलस्तीनियों ने यहूदी आबादकारों के खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी और वो और पकड़ती जा रही थी, जिसके बाद फिर जो ज़ायनिस्ट थे उन्होंने भी तशद्दुद की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और वो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ रोकने के नाम पर बरतानिया और अमेरिका ने इसराइल के वजूद को और इसराइल को तस्लीम किया। लेकिन मसला फ़लस्तीन जो है ना, ये 48 में नहीं, ये 1926 में बालफोर डिक्लेरेशन आया और वहाँ यहूदियों की आबादकारी शुरू हुई, तो 31 में वहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ जद्दोजहद शुरू कर दी थी। फ़लस्तीन का मसला 48 में नहीं है, उससे पहले से। तो वो जो बयानात हैं मोहम्मद बिना के उससे पहले के हैं, वो मौजूद हैं अपनी जगह कि हम फ़लस्तीनियों के हिमायत करें। जी शेख खालिद साहब मेरा थोड़ा सा सवाल है। एक मिनट शेख साहब। पशुमन जी जी वो जी जी मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस वक्त ट्रम्प साहब नेतन्याहू को गाली देते हुए इस सूरत हाल में क्या अमेरिका आज इतना जित हुआ है उनसे, तो इसके तनाज़ुर में वहाँ कोई उनकी सोचों में तब्दीली आएगी? इस सवाल किससे है बता दिया करें जज साहब किस स्पीकर से जज बात साहब ये है जी ट्रम्प कैन से एनीथिंग
मिनिस्टर की बात कह रहा था ना, उसको दिमाग में बुखार चढ़ा हुआ है कि किसी तरह से उसने पीस प्राइज लेना है, नोबेल पीस प्राइज, और उसको मिल जाए। डरा हुआ है वो उस कॉन्टेस्ट में कि मैंने कहा कि तुम सीज फायर करो, तुम क्यों नहीं करते, मुँह सवाले से ऐसे गाड़ी तो उसको मुँह में आई गई, वो उसने वाकआउट किया। लेकिन क्या उससे आपको बहुत बड़ा मतलब निकालेंगे, उससे दो सीधी उसमें कुछ नहीं, सवाल इसलिए कि मैं यार नोबेल प्राइज लेने के उसको पहुँचा हूँ लेके, और तुम मेरी बात नहीं मान रहे, इससे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान लिखवा रहा था नोबेल प्राइज। वासिफ अख्तर, शहजाद साहब पहले कह रहे हैं, उनके बाद शहजाद साहब, कामरेड शहजाद। शुक्रिया जैसे साहब, एक तो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ही सिर्फ हल नहीं है, आप इस साहब ने बात की, मेरे ख्याल में वो बड़ा शानदार है, क्योंकि हमारे इधर लिबरल्स में भी और लेफ्ट में भी एक ख्याल ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है वो खुद ही चीज़ों को, मसाइल को सॉल्व कर देगी, जो सरमायादाराना मसाइल हैं, जो साम्राज्य जो सोच है उनकी। तो ये एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त था। दूसरा क्या आप इसको इस तरह, मतलब आपने बात भी की कि एक तरफ तो जो है अमेरिकी साम्राज्य का जो है वो एक क्राइसिस है जो बड़ा वाज़ेह होकर सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ नई साम्राज्यिक कुवतें पिछले अरसे के अंदर डेवलप हुई हैं, जिनमें से एक जो है वो इसराइल भी है। वो जो फक ऑफ वाली बात है वो बेसिकली थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एक किरदार भी है, जो है तो एक छौनी, लेकिन पिछले अरसे में जो डेवलपमेंट हुई है इसराइल के अंदर उसके सरमाए की, उसके बाद इंडिपेंडेंट किरदार इसराइल अपना बना रहा है खित्ते के अंदर, और बाज़ जगहों में जो है वो साम्राज्य, जो अमेरिकन साम्राज्य को मजबूर भी करता है अपने पीछे। एक तो वो है। दूसरा एक आम ख्याल जो हमारे यहाँ पर, मतलब एक तो ये बात सही है, आपने भी इसको एक्सप्लेन किया कि चाइना ने बहुत फिनोमिनल डेवलपमेंट की है पिछले अरसे के अंदर, बहुत रैपिड भी है, लेकिन जो चाइना और अमेरिका का तज़ाद है इस वक्त, वो अगर हम उसको देखें तो वो वाज़ेह तौर पे दुनिया की जो मार्केट्स हैं और जो वसाइल हैं उन पे कंट्रोल का तज़ाद है। और ये जो तज़ाद है, इसको किस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये किसी खित्ते में या किसी मुल्क के अवाम की बेहतरी में कोई किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसा ही है जिस तरह मैं बस इनको ख़त्म कर रहा है कि क्वेश्चन है मैं माजरत खाऊं यार, कोई दोस्त की दिलदारी ना हो, असल में ना मेरे सवाल करने का रवाज है, लेकिन अच्छा है दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, कि कैपिटलिस्ट निज़ाम अपने ही अंदरूनी तज़ादात के नतीजे में, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के नतीजे में, अंदरूनी ग्रुप के नतीजे में खुद ब खुद ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच है, इसको हिस्टोरिकल डिटरमिनिज्म कहा जाता है, और फिर मार्क्सिस्ट ने कहा। अच्छा, डिटरमिनिज्म में चीज़ें ज़रूर हो गई होंगी, लेकिन उसी डिटरमिनिज्म को बाज़ फैक्टर्स जो है एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिटरमिनिज्म तो अपनी जगह पे हमेशा रहा है तारीख में और आज भी है, कि उसकी अंदरूनी टूट ही है ना, जिसके नतीजे में ज़ोरान कामयाब हो गया है अनवर की बरेले में, तो अंदरूनी टूट तो डिटरमिनिस्टिक वे से हमेशा रहती है और वो लीड कर जाती है टुवर्ड्स समथिंग, लेकिन उसमें बाज़ इवेंट्स या बाज़ सब्जेक्टिव फोर्सेस अपना रोल ऐसा प्ले कर देती है जिससे वो एक डिसाइसिव टर्न ले जाती है। तो नो डाउट द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, वो ग्रेजुअली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन का तेजी से शिकार हो रही है, और उसके नतीजे में भी वो दुआर की तरफ जा रही है। लेकिन ये कहना कि वो महज अपनी उस वजह से चली जाएगी तो मिशन का केयर कर, ये अगली बात दोस्त है। आपने जो दूसरी अहम बात आपने की है वो है कि जो इसराइल एक रीजनल पावर बनने का ख्वाब देख रहा था, वो बिल्कुल उसका ख्वाब है। ग्रेटर इसराइल का
आप उनका मजहबी हवाले से भी है और रीजनल पावर बनने के हवाले से भी है, जो ओवर एंड अबव हम कह सकते हैं एट प्लेसेस कि जहाँ वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर इनलाइन नहीं होते तो उनकी एक अपनी एम्बिशन भी है, और वो एम्बिशन हमें नज़र आती है जो साउथ जो नॉर्थ साउथ की एरिया में नियॉम का नियॉम का सुना होगा, फिर उसको मैंने यहाँ कुछ नियॉम के सारे प्रोजेक्ट में है वो इसराइली कंपनियों का, सो वो अपनी जगह पे है। अब वो बीच में बात रहेगी, अब अगर हम पे गौर किया जाए तो क्या चाहे कि जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया ये उसका हिस्सा बन जाए यूएई, ताकि वो अपने इस एक्सपेंशन प्लान को जो उनका मजहबी हवाले से भी है। लेकिन हुआ क्या है कि इस जंग में एक बहुत बड़ा मिथ जो है शुरू हुआ, और वो मिथ ये था कि इसराइल इज अ सेफ हेवन, ये बड़ी महफूज जगह है। वहाँ पर जो ईरान के बेटे गए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने वही मिसाइल, ये उनकी कैलकुलेशन में कहीं था ही नहीं, ये उनकी कैलकुलेशन से बाहर चला गया वहाँ। जिस तरह उनकी कैलकुलेशन में ये नहीं था कि हमास के छाता पदार एक दिन उतरेंगे और उनके 1100 आदमियों को पकड़ लेंगे। होता ये है कि जब जंग हो रही होती है तो दोनों तरफ से सरप्राइजेज होते हैं, और ये सरप्राइजेज हुए और फिर उसके नतीजे में वो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है। तो अब ये जो इसराइल में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है, उसके बाद जो मिसाइल या जूस यूरोप से छोड़ के या नॉर्थ अमेरिका से छोड़ के आगे बाद रह रहे थे, अब उन्होंने वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी साइप्रस में और बाकी जगहों पर, ताकि वो वहाँ जा सकें जब जैसे यहाँ लड़ाई शुरू हो। दूसरे बंकर्स में जाकर उन्होंने जाने को चाहिए, इसलिए उनकी किलिंग्स कम हुई। अब बंकर्स में कितने दिन गुजार सकते हैं, बंकर्स में क्या लाइफ पैटर्न रह सकते हैं। तो ये जो मिस ब्रेक हुआ ये इस रीजनल पावर बनने वाले चीज को क्रैक करेगा, और ये इनकी विश तो है, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इस पर मुझे जाती नजर नहीं है। अब लास्ट के बाद ये वो है कि जो बेसिक कंपटीशन है चाइना और अमेरिका में, वो बेसिकली मार्केट इकॉनमी को टेक ओवर करने का है और लोगों के वसाइल को इस्तेमाल करना है। बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। चीन ने पिछले कई वर्षों में मार्केट इकॉनमी में जो एक्सपेंशन पाकिस्तान की की है वो बिल्कुल वही है जो मार्केट इकॉनमी के हवाले से कोई भी दूसरा मुल्क मार्केट वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए करेगा। ये जो पावर के प्रोजेक्ट है, मैं तुम्हें डील करता हूँ उनके साथ। जेलर प्रपोजल प्रोजेक्ट हो रहा है, जो अभी ये 10 का प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें और बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो चाइना के हैं। उसकी जो टर्म्स हैं वो टर्म्स वो है जो उनके फायदे के लिए, क्योंकि चाइना इज नो लॉन्गर ए चाइना मॉडल। ये कम्युनिस्ट पार्टी का नाम जरूर रह गया है, लेकिन इससे न्यू मार्केट ऑपरेटर, ये नया मार्केट ऑपरेटर है, नया मार्केट प्लेयर है, और उनकी अपनी तरजीहात हैं, और वहाँ पर एक बड़ी मजबूत और बहुत बड़े लेवल की एक अपर मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है, और वो अपने लिए नई मार्केट्स नए वो ढूंढ चुके हैं। तो इसमें अगला सवाल आपका ये था कि अवाम के पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हैं। अवाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये देखना होगा कि पहले तो आपका एक पोलिटिकल अवामी बेस हो जिसकी बुनियाद पर आप उनसे निगोशिएट कर सकें। आपको उनसे निगोशिएट करना पड़ेगा, आपको उनकी टर्म्स सारी नहीं माननी पड़ेगी, और अगर आप अपनी ऊपर अपने पाँव अपने जमीन पर आपके नहीं हैं और आपने सिर्फ आपका तब्दील करने अब ये मास्टर है तो अब इस मास्टर को मास्टर मान लें, जो कि इस पर सूरत ध्यान बनी नहीं कि आप दो मास्टर के बीच में चक्की के दो पार्टों की तरह हैं और उसके तरह पिस भी सकते हैं। उसके बजाय अगर आपके पास की छोटी सी मिसाल है तो मलेशिया में आदि मोहम्मद थोड़े से दिए भी आते हैं, उसमें उनके 25 आदमी की प्रोजेक्ट जो है वो कैसे करती है, क्योंकि उनकी टर्म्स वहाँ के अवाब के और मलेशिया के हाथ में नहीं थे, उसने उनको कर दिया। तो क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई पोलिटिकल फोर्स है जो कि चाइनीज़ के साथ निगोशिएट कर सकते? तो बात यह है कि अवाम की
टेरिटरी फोर्स है या बन सकती है, तो वो यहाँ पे वहाँ के फायदे के लिए बात कर सकती है। ये तो आपको करना कि चाइना अगर सोशलिस्ट भी रहता तो हम साफ देखते कि वो पाकिस्तान के वहाँ पर वो यार आपको दुनिया से निकले और रियलिटी की दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी जी सवाल। आखिरी सवाल पहले चले भी जितने आपका आखिरी या मुख्तसर नदी साहब जरा मुख्तसर करिएगा, शाह साहब की सीयत क्योंकि उनका कमर का कामरेड बासा पत्थर। अच्छा, दोनों शायद फरमान से बस बलिया से मतलब दो में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सवाल ये है कि जो वेस्टर्न कल्चरल हेजमनी है उसका आंसर किसके पास है? वेस्टर्न कल्चरल हेजमनी का आंसर किसके पास है? क्या ये जो नया ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसके पास उसका जवाब मौजूद है? वेस्टर्न कल्चरल हेजमनी का, does China and the BRIC they have the answer to the China to the Western cultural hegemony, global hegemony? एक तो ये, उसमें थोड़ी सी वजाहत में करूँगा। एक तो ये पिछले अरसे में हमने देखा कि कोशिश रही कि उसको बाहर से अटैक किया जा सके, और उसमें हमें हंटिंगटन से लेकर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से ये रीसेंट जो वाक़यात हैं 9/11 और उसके बाद अभी के जो ईरान की सूरत हाल है, उस हवाले से हमें वहाँ पर एक पूरा एक नैरेटिव जो है वो हमें नजर आता है, और वो बड़ा ख़तरनाक नैरेटिव है, और उसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो अगर ये कहा जाए कि दुनिया के लिए ख़तरनाक होगी तो इतनी गलत बात नहीं होगी। तो उसका आंसर किसके पास है? क्या जो न्यू इमर्जिंग ब्लॉक है उसके पास उसका आंसर मौजूद है तो क्या है एक, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जो कुछ मिडल ईस्ट में रिसेंटली हो गया है, इसके असरार जो मिडल ईस्ट की बादशाहतें और आमराना हुकूमतें उन पर क्या असरार मुरतब हो गए? क्या वो ऐसे कायम रह सकेंगी या उस पर कोई? जी आखिरी सवाल आपका है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद वाला आखिरी तय कर नहीं बस हो गया, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, अगली दफ़ा भी आएंगे, बैठेंगे। ये आसर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अभी ये देखें रिसेंटली ये प्रोग्राम कामयाब हुआ, उसके बाद पिछले 3 दिन से पूरा इस्लामोफोबिया का परिणाम हो रहा है कि ये तो दरअसल तालिबान का नुमाइंदा है। उस पर किसी ने वो मकाली देख रहा था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीर पे काला भूसा लगा के दिखाया हुआ है कि ये जो है ये इसको भी काला भूसा फैला देगा। तो इस्लामोफोबिया के हवाले से ये जो अमेरिका ने शुरू किया था अपने ही बनाए हुए मुजाहिदीन को, उसने जब टेररिस्ट डिक्लेयर किया और ये सारा किया और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी लाई, तो सारे का पर्सपेक्टिव बुनियादी तौर पे एक नया एनिमी, एक नई बोगी क्रिएट करना था आफ्टर सोवियत यूनियन, कि दुनिया में अपनी फौजें उतारने के लिए अब उसके पास क्या बनना हो। सोवियत यूनियन तो क्लैश हो गया, तो जब वार्सा पैक्ट खत्म हुआ तो हमारा ख्याल ये था कि नेटो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मज़ीद बढ़ गया। तो उस पर्सपेक्टिव में इस्लामोफोबिया एक इम्पेरियलिस्ट एजेंडा है। अभी ये इसी से बातें हो गई, ज़ायनिस्ट साथियों को सारे इसके खिलाफ शुरू हो गए क्योंकि इसने सोशलिज्म की बात की, इसने अवाम की बात की, तो अब उस पर अटैक उस हवाले से तो कर नहीं सकते, तो अब उसका मुसलमान होना जो है वो उनके हाथ है। तो इस्लामोफोबिया के को यूज़ किया जाता है बेसिकली डिफरेंट वालों से वेस्ट में, जहाँ भी कहीं मुसलमान जो हैं वो उनको परसिक्यूट करना, बाद दफ़ा उसको बहाना भी बनाया जाता है जब कोई बड़ा इवेंट डेवलपमेंट हो जाए तो वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी कार्टून बनवा दिए जाते हैं, जो और इस्लामिक लोग भी कहानी आप जानते हैं पिछले 20 साल में हो गया। तो इस्लामोफोबिया वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के लिए काफ़ी जेन्युइन इशू है। मैंने इस पर ज़माने में इंटरनेट लेक्चर भी दिया था, और
یہ باقی طور پر اس چھوڑیں تو پاکستانی ڈیاسپورا میں تو خان کی پاپولیرٹی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جو اس کی اسلاموفوبیا کی تقریر ہے اور باقی وہ اس کی وجہ ورنہ یہ ان کو کیا دیکھتے اسلاموفوبیا ایک اہم ایشو ہے اور اس میں یہ جو دوسرا پڑاؤ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا بالکل نہ اس کا یہ ایشو ہے. دیکھیے ابھی طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان میں انٹرنل پیس ہے. چائنا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہاں لڑکیاں جین پہن رہی ہیں کرتا پہن رہی ہیں. ان کو تو ایک سیف پیسج چاہیے تھا ان کو بھی تو ان کے مفاد میں اس حوالے سے یہ بحث کا موضوع بھی نہیں. سو جو ہے کلچرل ہیجمنی کا ذکر آپ نے کیا ہے ویسٹ کی وہ اس میں یہ اسلاموفوبیا کا ٹاپک رہے گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس ریئل ایشو کو ہٹ کرنے کے بجائے وہ اس کا سہارا لے رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے کہ آپ دراصل اسلام سے نہیں بلکہ اس ایجنڈے کے خلاف بات کریں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی انہیں دے جی نام بتائیں. میرا نام بتاؤں گا. میرا سوال شاہ صاحب سے ہے. سمپل اور سادہ سوال ہے بلکہ میرا ذاتی مخمصہ ہے. سوال یہ ہے کہ انسان ہو یا معاشرہ اور مسلمان معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ میری اپروچ کے مطابق اس کے دو وجود ہوتے ہیں. پہلا اس کا ایک انسانی اخلاقی وجود ہوتا ہے اور دوسرا اس کا حیوانی وجود ہوتا ہے. یہ دونوں وجود مل کر یا انسان بنتا ہے یا انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل تناظر میں خاص کر امریکہ اور یورپ کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے ان کی سوسائٹی کے جو دو فینومینا ہیں اسٹیٹ اور عوام اپنے کسی بھی ایشو پر ایک اخلاقی ان کے اوپر ایک اخلاقی وجود ڈومیننٹ ہوتا ہے اور جو ان کی ریاست کا حکمران ہے یا ریاست ہے اس کے اوپر حیوانی وجود ڈومیننٹ ہوتا ہے. ایک ہی سوسائٹی کے دو فینومینا پر وہ دو الگ الگ اپروچ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب سے شاہ صاحب جی آپ کے لیے یورپ کے اخلاقی اس کے دیکھیے حکمران طبقہ تو ہم میں سے ہے وہ تو باقی جو آپ نے کہا نا غیر انسانی مخلوق ہے وہ ٹرینڈ لوگ ہیں ان کے پورا اس نیٹ ورک کے لوگ ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے جن کے سودے بازی ہوتی ہے جن کو مفادات کا لالچ دیا جاتا ہے مفادات دیے جاتے ہیں ان کے ہر آپ میں تو اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سوائے چند ممالک میں تو جیسے ایران تھوڑا سا آئسولیٹ ہو گیا یا ابھی چائنا جو ہے اپنی ہیجمنی وہ قائم کر رہی ہے. ورنہ یہ جو کیپٹلسٹ ہے سرمایہ دار ہے انہوں نے تو یہ کھیل بنایا ہوا حکمران والا جو ہے یہ یعنی پورا یورپ اس وقت دیکھیں 3 ملک جو ہے وہ ایسے وہ اس کو گھما رہے ہیں پورے یورپی یونین اور ان 3 کے علاوہ بھی کتنے بیٹھے ہیں کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا نا یا ڈاکٹر صاحب نے کہ عوام تو بیچاری تڑپ رہی ہے عوام تو کوشش کر رہی ہے لیکن یہ لوگ اور مجھے صرف پاکستان کو آپ لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عوام حکمرانوں سے ہٹ کے آپ کو نظر آئے کوئی حکمرانوں سے ہٹ کا آیا ہوگا تو بتا دیے گئے ہو اس وقت تک جب تک وہ اندر جیلوں میں رکھ کے اس کو بڑی واش نہیں کر لیتے اپنے نیٹ ورک میں نہیں لے آتے تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ حکمران دوبارہ وہ طے کر کے آئے گا سودے بازی کر کے آئے گا اور اس کے بعد وہ ساری زندگی کر پڑتا بنا رہے گا. خاص طور پہ تیسری دنیا میں آپ کو بتا دو چار ملکوں کو شاید آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ تو ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں نا. آپ کو شاید اندازہ ہو گیا یقیناً شاہ صاحب بتا دیں گے اس وقت IMF میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پوزیشن ہے وہ چائنا کی سب سے زیادہ سرمایہ اس میں $80 ٹریلین کے قریب یہ مقروض ہے امریکہ چائنا کا. بیل آؤٹ بھی کروایا تھا وہ سونا وغیرہ اب ممالک کو چھوڑے بات ہوگی نا سرمایہ دارانہ نظام کی تو پھر اور سب
सतह पर देखना पड़ेगा। उनके लिए ट्रंप भी पपट है, उनके लिए जो बैठे हैं मैक्रोन और फलाना और ये मैक्रोन, ये सारे पपट्स हैं उनके लिए, जो वो बैठे ऊपर चला उसकी ट्रंप की कितने उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट मारे उस वक्त जब अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। ये मेरे भी ख्याल की कोई मुल्क या वो मरवाने वालों का नेटवर्क का होगा या फिर बेचारा कमजोर गुलामों वाला होगा, इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता। अब जैसे वो है ईरान को मैंने कहा छोड़ दे, हो सकता है जैसे इमरान खान एक मकसद है कि भोला मासूम आदमी आ गया था जिसे पता ही नहीं था कि सियासत क्या है, ये कुछ छोड़ दे, कुछ वो हो जाती है कि ये तखसीस होती है कोई भी बंदे उनको छोड़ दे, अक्सरियत और बरान उनके पॉकेट्स हैं और उनके इशारों को बगैर चल। जी शेख साहब आप बात करना चाह रहे थे, ये बात रह गई थी, वो सवाल था ना कर लिया आपने कि गल्फ स्टेट्स के जो बात चाहते हैं उनको क्या असर होगा, तो मैं वो रह गया था जवाब। जी तो ये यकीनन बात ये है कि अभी बात हो रही थी अवाम और अफवाह, जिस तरह से बेशक घरों में बैठे पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की हमदर्दियाँ ईरान के साथ, मैं आपको बताता हूँ कि पूरी अरब वर्ल्ड जहाँ तक अवाम का ताल्लुक 99% अमरीका के खिलाफ, सऊदी अरब जैसे आप आम आदमी से बात करें इंतहाई शदीद नफरत करता है अमरीका की ये जो पॉलिसियाँ हैं, तो और उनकी अरब वर्ल्ड अब ये जनरलाइज कब होगा, किस तरह होगा, कब होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन अवाम की सतह पर मैं ذاتی तौर पर जानता हूँ कि पूरी अरब वर्ल्ड इन हुक्मरानों की अमेरिका बाद जो पॉलिसियाँ हैं उनके हक में अवाम जी बहुत शुक्रिया अहबाब, हमने इस डिबेट को यहाँ तक ले आए। अब इससे आगे अगले सेशन में हम हमारे नए मेहमान होंगे, हम ये भी देखेंगे कि चाइना का जो रोल है इन फ्यूचर वो क्या होगा, क्या हमारे लिए फेवरेबल होगा, या वो जो डिबेट है कि चाइना भाव का चाइना नहीं है, क्या वो भी एक नया साम्राज्य है कि आइंदा 10, 15 या 20 सालों बाद जिस तरह हम मर्द बार अमेरिका का नारा सुना था, क्या इस हवाले से चाइना के खिलाफ भी हमें नारे मारने पड़ेंगे, या हमें कहीं सुख का सांस आएगा छोटे मुल्कों को जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, इनकी आवाम को भी कोई फ़ायदा होगा, सहूलत होगी। जैसे कि दुनिया 2 हिस्सों में जब तकसीम थी तो रशियंस ने टेक्नोलॉजी दी, कारखाने दिए, और वहाँ जो उनके गुलाब के ममालक थे वहाँ इंसानी तरक्की हुई। तो दूसरे हिस्से में जो अमेरिकन थे उन्हें कर्जे दिए और कर्जों के अंदर लोगों को जकड़ा। तो क्या इन फ्यूचर में क्या सूरत हाल होगी, इस पर भी हम एक बहस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट का हिस्सा बने। शाह साहब का, हमारे जैदी साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक शानदार इल्मी मुकालमे की तसलसल को आगे बढ़ाया है। हम आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। आपका